In this video, we will study the topic elasticity of demand. Now, what is the meaning of elasticity? Suppose this is a rubber band. If we cut it, now this band is around 13 to 19. So 13 to 19 size. This is suppose 13 and this is 19. Now I can extend it. If I stretch it, then it comes to 23. If I stretch it this side, then it comes to 5. This is due to elasticity. This is the elasticity. So you can check कि ये कितना बढ़ जाएगा 7 to 21 और कम हो गया. This is due to elasticity. In this video, we will cover all about elasticity of demand. First is the definition of elasticity of demand. What is the definition? According to Dooley, Michael Dooley is professor of economics at University of California, Santa Cruz, USA. According to Dooley, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in its price, change in consumers' money income, and change in price of the other good. These are 3 points: change in price, change in money income, change in the price of other good. किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ मच. अगर कंज्यूमर की मनी इनकम में चेंज आएगा देन हाउ मच चेंज इज इन डिमांड. अगर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज आएगा देन हाउ मच चेंज इन डिमांड. दिस इज द इलास्टिसिटी. कितनी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. Types of elasticity of demand. This is the demand function. Dx is the function of Px, price of the commodity, Xx. M means money income of the consumer, and this is the price of Y, price of the related good. But as you see in the previous video of law of demand, there are 8 determinants of demand, not 3. 4th is taste, 5th is expectations, then size of population, then composition of population, and distribution of income. Now these 3 points, distribution of income, composition of population, and size of population, they affect market demand. And these 2 determinants, expectation and taste, these are qualitative variables. They are difficult to measure quantitatively.
तो क्वांटिटेटिवली हम जिन डिटर्मिनेंट्स को मेजर कर सकते हैं दे आर 3: प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितनी प्राइस है; कंज्यूमर्स मनी इनकम, कंज्यूमर के पास कितनी मनी है; एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। तो इन तीनों में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो जब हम एक्स कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से एक्स की डिमांड में चेंज देखेंगे, कीपिंग एम एंड पी वाई एस कॉन्स्टेंट। तो किसी एक की ही स्टडी हम करेंगे, किसी एक का अफेक्ट डिमांड के ऊपर। When we study the effect of change in price of X on demand for X, that is known as price elasticity of demand. It will be denoted by small e in this video, in this chapter. The effect of change in income on demand for X, that is known as income elasticity of demand. And the effect of change in price of Y on demand for X, that is known as cross elasticity of demand. तो प्राइस इलास्टिसिटी में हम देखेंगे कि X की कितनी प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया। थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर tells us that there is inverse relation between demand and price. प्राइस जब इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, बट कितनी प्राइस इंक्रीज होने से कितनी डिमांड कम हो जाएगी ये हमें पता चलेगा इलास्टिसिटी से, प्राइस इलास्टिसिटी से। दिस इज क्वांटिटेटिव। सिमिलरली in theory of demand chapter, we know demand for X is positively related with consumers' money income. मनी इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज पॉजिटिव। बट कितनी इनकम इंक्रीज होने से कितनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज क्वांटिटेटिव और डिग्री। तो ये हमें पता चलेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। सिमिलरली दूसरी कमोडिटी की कितनी प्राइस चेंज होने से एक्स की कितनी डिमांड चेंज होगी, दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। According to Alfred Marshall's book Principles of Economics 1890 was the dominant economic textbook in England for many years. It brings the ideas of supply and demand, marginal utility, and costs of production into a coherent whole. He is known as one of the founders of New Classical Economics. According to Marshall, the price elasticity of demand, जो price elasticity of demand है, it measures the proportionate change in the quantity demanded of a good due to proportionate change in its price. That is, symbolically हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E small e, this is price elasticity of demand. Proportionate change in quantity demanded for the good X due to proportionate change in price of the good X. This is the proportionate change in quantity demanded. This is the proportionate change in price. Now, what is the meaning of proportionate change? Suppose there is something that is 5, कुछ भी है जो suppose 5 है, कोई भी value, suppose it is 5, it increases and becomes 7.
कोई भी वैल्यू सपोज 5 से बढ़कर 7 हो गई, कुछ भी, देन व्हाट इज द चेंज? चेंज in this is, suppose this is quantity, change is 2, this is 2, 7 minus 5, this is 2, इसको हम कहते हैं change. Now what is proportionate change? proportionate change है कि ये जो change आई ये कितने में से आई, मतलब पहले कितनी थी, पहले थे ये 5, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, इंटू 100 कर दें, दिस बिकम्स 20, दिस इज 40%. 40% is the proportionate change. You can say कि 5 था वो 40% बढ़ गया, 5 का 40% 2, 40% बढ़ गया और वो 7 हो गया. तो चेंज जो है, चेंज इज 2, प्रोपोर्शनेट चेंज जो है दिस इज 40%. तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स, चेंज कितनी आई, जैसे 2, कितने में से आई, पहले क्या था, दिस इज 5. तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, दिस इज प्रोपोर्शनेट चेंज. सिमिलरली प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स. ये जो डिवाइड है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये उल्टा हो गया, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स, पी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स. तो ये जो पी एक्स है, डेल्टा क्यू एक्स है, अगर हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, मैथमेटिकली इट इज ट्रू, बिकॉज 8 into 4 equals to 32 और 4 into 8 equals to 32, both are same. तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको हम बाद में लिख सकते हैं. दिस इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स एंड डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स. तो ये हमने क्यों किया, सिंपली डेल्टा डेल्टा हमने एक साइड कर लिए और डेल्टा फ्री हमने एक साइड कर लिए. This is the formula for price elasticity of demand. Same, Px upon Qx, delta Qx upon delta Px. Now we put the minus sign because of the law of demand. ये हमने अपने इकोनॉमिक्स के बेस पे बनाया. ये मैथमेटिकली तो नहीं कहीं है नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन. दिस इज बिकॉज ऑफ economics, because of law of demand. We know there is inverse relation between demand and price. So to show this inverse relation, we put the minus sign here. This is the complete formula of price elasticity of demand. Minus px upon qx into delta qx upon delta px. ये जो डॉट है, डॉट denotes multiplication. Now degrees of price elasticity of demand. This is also known as types or kinds. There are 5 degrees of price elasticity of demand. 5 degrees हैं. डिग्रीज का क्या मतलब है, काइंड्स का, टाइप्स का क्या मतलब है, कि जब हम प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये हमने देखना है. क्या डिमांड में प्राइस के बराबर चेंज आएगा, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा आएगा, कम आएगा, कितना चेंज आएगा. Now one is the perfect elastic demand, that is known as E equals to infinity. Perfect elastic demand. When with change in price demand changes infinitely, जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड इन्फिनाइटली चेंज हो जाए, then it is known as perfect elastic demand. For example, this diagram, suppose price is P1, demand is X1, price is same, demand is X2. This is infinite.
दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों लाइन से पैरेलल जा रही हैं, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस केस में है इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड कर्व। ना ये इन्फिनाइट इलास्टिक क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। You know from the previous video of law of demand or theory of demand कि अगर हम डिमांड कर्व बनाएं, एक साइड लगाएं कमोडिटी, दूसरी साइड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, दिस इज द डिमांड कर्व dx, and you also know from the part 2 of law of demand video that with change in price we move on the same demand curve from one point to another. Suppose this is price P1, this is X1, this is suppose point E1. When price falls from P1 to P0, जब प्राइस P1 से कम होकर P0 हो गई, then we move from point E1 to E2 and this is X2. What we want to say कि जब किसी कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होती है तो हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में है, प्राइस कम हुई, डिमांड ज्यादा हो गई। दिस इज द डिमांड कर्व, और यू कैन से ये एक दीवार है। दीवार कैसे? ये प्राइस है P1, हम यहाँ से चले देखने के लिए कि डिमांड कितनी है, तो हम जब यहाँ से जा रहे हैं, गए 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 गए, डिमांड पे आके रुक गए क्योंकि ये दीवार आ गई। अब प्राइस कम हो गई तो डिमांड कितनी है ये देखने के लिए हम यहाँ से गए, ये हम यहाँ से जा रहे हैं। जब तक वो दीवार नहीं आएगी हम आगे जाते रहेंगे, गए 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 और यहाँ पे आके हम रुक गए। तो जब प्राइस चेंज हुई तो हमें, जब हम यहाँ से चले तो हमें रोकने वाला कुछ ना कुछ है, दिस इज डिमांड कर्व। तो वहाँ पे आके हम रुक गए तो हमें पता चला कि प्राइस कम होने से इतनी डिमांड बढ़ गई। ना ये इन्फिनाइट क्यों है? अगर हम इस प्राइस पे देखें एट P1, डिमांड इज सपोज E1, नाउ यू चेंज द प्राइस सपोज फ्रॉम P1 टू P0, प्राइस कम हो गई P1 टू P0, जैसे यहाँ पे कम हुई। तो यहाँ पे क्या था, जब हम चले तो उसी डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पे आके हम रुक गए। मतलब जब हम यहाँ से चले तो हम इसी डिमांड कर्व को जाके मिले। तो अगर हम सेम यहाँ से चलें राइट साइड, दिस इज द डिमांड कर्व। तो अगर हम यहाँ से प्राइस कम होने से डिमांड कर्व पे जाएंगे तो हम उसी डिमांड कर्व पे आएंगे जिस डिमांड कर्व पे हम P1 प्राइस के ऊपर थे। तो P1 के ऊपर हम इस डिमांड कर्व के ऊपर हैं। तो जब हम प्राइस कम करेंगे और यहाँ से हम जब आगे चलेंगे तो क्या हम dx को मिल पाएंगे? नो, you go infinitely but you will never touch dx। तो इन्फिनाइट आप यहाँ से दूर चले जाओ, जाते रहो, बट कभी भी आप इस डिमांड कर्व को टच नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ी सी प्राइस चेंज होने पे
चाहे ये कम हो चाहे ज़्यादा हो, डिमांड थोड़ी सी प्राइस चेंज होने से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें पता ही नहीं कि कितनी बढ़ गई. दैट इज इनफिनाइट चेंज इन डिमांड. This is the extreme case, that is infinite elasticity. Second type is zero elasticity or perfect inelastic demand. This was perfect elastic demand. This is perfect inelastic. और you can say, इसको अगर हम उल्टा कर दें, imperfect elastic demand या फिर परफेक्ट inelastic demand. तो इसमें क्या है कि जब हम प्राइस चेंज करेंगे, सपोज इनिशियल प्राइस इज P1, डिमांड इज X1. जब प्राइस कम हुई, देन जब हम यहाँ से चले तो यहाँ के रुके, डिमांड इज अगेन सेम X1. मतलब प्राइस चेंज होने पे डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, डिमांड ना कम हुई ना ज़्यादा हुई. तो डिमांड जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे हमने पहले देखा कि ये फ्लेक्सिबल है. बट इन दिस केस, in case of zero elasticity, it is not flexible, it is fixed like this. This is a box which is not elastic. अगर हम इसको खींचेंगे, जोर से पुल करेंगे, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, इट विल नॉट राइज, इंक्रीज नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, जीरो इलास्टिसिटी है. When with change in price demand does not change, जब प्राइस चेंज होने पे डिमांड चेंज नहीं होती, that is known as perfect inelastic demand. एंड इसका मतलब डिमांड और प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है इन दिस पॉइंट. एंड अगर कोई ये रिलेशन नहीं है, इट मीन्स अगेन इट इज एक्सट्रीम केस के प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं हो रही. टू शो डायग्रामेटिकली इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम उनको वर्टिकल लाइन के थ्रू ऐसे बना सकते हैं. इट शोज कि इसमें चेंज आने से, वर्टिकल लाइन में चेंज आने से हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं आता. दिस लाइन इज वर्टिकल और यू कैन से इट इज पैरेलल टू प्राइस एक्सिस. इसके ये बराबर है, पैरेलल है. Here elasticity of demand or price elasticity of demand is 0. Again it is extreme case. So these both cases are extreme cases. The third type is unitary elastic demand. Unitary elastic demand means E equals to 1 when the percent change in demand is equal to percent change in price. This formula, proportionate change in demand, proportionate change in demand, proportionate change in price, when both are same. This is percent change in demand and percent change in price.
like this: percent change in demand and percent change in price. When both are same, suppose it is 15, suppose it is 15, then it is 1. When percent change in demand and percent change in price is same, और जितनी परसेंट चेंज प्राइस में हुई डिमांड में भी परसेंट चेंज उतनी ही हो गई, तो मैथमेटिकली इट इज सिंपल, तो काट के आएगा 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे बनाते हैं. व्हेन यू विल ड्रॉ दिस, कीप 2-3 पॉइंट्स इन माइंड कि डिमांड कर्व जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, वर्टिकल नहीं बनाना, पॉजिटिव नहीं बनाना, नेगेटिव ही बनाना है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. In this case, when price falls, demand rises and elasticity is equal to 1. अगर हम इसकी वैल्यूज लगाएं, स्केल लगाएं और उसको कैलकुलेट करें, then elasticity will be equal to 1. और कोई भी डिमांड कर्व और कोई भी कर्व, not only demand curve, any curve whose elasticity is equal to 1, mathematically that curve is known as rectangular hyperbola. दिस इज द मैथमेटिकल नेम. यहाँ पे इस चैप्टर में या हमारी इकोनॉमिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड्स के ऊपर आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या टफ वर्ड आ गए. दिस इज़ ओनली मैथमेटिकल नेम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1. तो हमने इसको इसीलिए लिखा है ताकि पता चले कि हमारी जो डायग्राम है इट शोज 1 इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी. फोर्थ पॉइंट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, E greater than 1. Simply in mathematically, when percent change in demand is greater than percent change in price, परसेंट चेंज इन डिमांड, इसको जैसे 15 हमने लगाया, अगर ये 20-15 हो तो नेचुरली इट विल बी ग्रेटर देन 1. तो परसेंट चेंज इन डिमांड अगर ज़्यादा होगा प्राइस से तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. तो इसको हम थोड़ा सा टिल्ट बना लेते हैं, बिकॉज यू नो दिस इज इनफिनाइट इलास्टिसिटी, फर्स्ट पॉइंट. दिस इज zero elasticity, second point. this is suppose 1 elasticity. तो इसके बीच में कहीं हम बनाएंगे ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा, इन्फिनाइट से कम. तो हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ये बन गया ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1. तो इसको कहते हैं इलास्टिक. एंड फिफ्थ पॉइंट इज सिंपल, दैट इज इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटी. लेस देन यूनिटी व्हेन परसेंट चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस. तो अगर हम ऊपर इसको सपोज 10 रखें, नीचे 15 रखें, तो ये काट के आएगा लेस देन 1. तो इसके लिए हमने क्या किया, दिस पोर्शन इज इन दिस एरिया, 0 से ज़्यादा, 1 से कम. तो इसके बीच में कुछ बनाया हमने, दैट इज लेस देन 1. तो ये जैसे बनाया, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. दिस इज इन इलास्टिक, इसको कहते हैं इन इलास्टिक. और अगर मैं आपको ये सारी इकट्ठी बना के दिखाऊं, देखो दिस इज x, प्राइस ऑफ x. Now this is
demand curve shows infinite elasticity. This curve shows zero elasticity. This shows rectangular hyperbola equals to 1. तो अब अगर हम बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी कुछ ड्रॉ करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन 1, एंड अगर हम 1 and 0, this is 0 elasticity, 1 and 0 के बीच में कुछ ड्रॉ करेंगे, this will be less than 1. So ये जो है ये और perfect elastic and zero elasticity, these are the extreme cases. जो डिमांड कर्व है वो ना तो हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब प्राइस चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया आपको पता ही नहीं चला, ऐसे नहीं हो सकता. डिमांड कर्व वर्टिकल भी नहीं होगी, प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे भी नहीं हो सकता. तो डिमांड कर्व जो होगी, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनके बीच बीच में ही होगी, इनके बीच बीच में ही होगी. तो इनके बीच बीच में हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे that will be negatively sloped, means law of demand. अगर हम इसके बाहर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे that is positively sloped. इसके बाहर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे that is positively sloped from left to right going upward. This is not the demand curve. इसके बीच बीच में ही हम रहेंगे, that is the demand curve. These are the end points, infinity and 0. तो इसके बीच बीच में जो इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव ही होगी, मतलब वो नेगेटिव डिमांड कर्व ही बनेगी. इलास्टिसिटी तो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, बट जो डिमांड कर्व है इट विल बी नेगेटिव, शोइंग लॉ ऑफ डिमांड. Now methods for the measurement of price elasticity of demand. Price elasticity demand जैसे हमने देखा 1 हो सकती है, तो 1 is very easy कि change in demand, change in price, proportionate change, 1 exactly 1 आ गया. तो हम पता कैसे करते हैं कि 1 है. ऐसे ही greater than 1. Now, greater than 1 means from 1 to infinity. There are so many values, infinite values. So exactly what is the exact magnitude, what is the exact value, what is the exact degree of price elasticity of demand? ऐसे ही less than 1, from 0 to 1. From 0 to 1 there may be infinite values. तो exact 0 to 1 के बीच में इलास्टिसिटी कितनी है? फॉर दिस मेजरमेंट देयर आर 5 मेथड्स. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, proportionate method, point method, arc method and revenue method. 5 methods हैं
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। वन बाई वन वी विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। Total expenditure is very simple term, and the formula to calculate total expenditure is very simple. This is price into quantity. For example, this is one pen, and the price of this pen is suppose 10 रुपीज। 10 रुपए का ये पेन है, और आपने अब ये 1 2 3 पेन आपने बाय किए। तो 3 पेन आपने जब बाय किए तो आपको कितने पैसे लगे? 10 20 and 30. This is price into quantity. प्राइस है इस केस में, पेन की हमारी जो एग्जांपल है इसमें प्राइस है 10, आपने बाय करे 3 पेन्स, तो टोटल जो आपका खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर वो हुआ 30 रुपीज। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज द टोटल एक्सपेंडिचर। और जो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये टोटल रेवेन्यू है, इट इज आल्सो प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्योंकि जैसे आपने 3 पेन्स बाय किए, आपने 1 2 3 30 रुपीज आपने दे दिए, तो आप 30 रुपीज दे रहे हो, आपका ये है एक्सपेंडिचर फ्रॉम बायर साइड। तो आपने ये 30 रुपीज बायर ने दे दिए, सेलर ने ये 30 रुपीज ले लिए। नाउ it is revenue from the seller side. Amount is same 30. From the buyer side it is expenditure, and for the seller it is revenue. Price into quantity, this is total expenditure. With the help of this total expenditure, we can measure price elasticity of demand. इस total expenditure के साथ हम price elasticity of demand का measure कर सकते हैं। ये greater than 1 है, less than 1 है, या equals to 1 है। कैसे? If with rise in price, total expenditure rises, तो मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, ब्रैकेट के बिना स्टडी किया। दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज स्टाइल। इफ विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस ई लेस देन 1, अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, और अगर हम ब्रैकेट स्टडी करें तो ऐसे रीड करेंगे, इफ विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, मतलब प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, मतलब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो, देन इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। क्यों होगी? To explain this, we are using this table. Suppose initial price is 2, demand is 10, so price into quantity, total expenditure is 20. Simple. Price है 2, demand है 10, total expenditure बन गया 2 into 10 20.
नाउ सपोज प्राइस राइजेस फ्रॉम 2 to 4। जो प्राइस है वो 2 से बढ़कर 4 हो गई, प्राइस डबल हो गई, तो प्राइस हो गई डबल। अब आप नॉर्मली सोचो कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डबल हो जाए तो उसकी जो डिमांड है वो हाफ रह जानी चाहिए। प्राइस डबल हो गई तो डिमांड हाफ होनी चाहिए, आधी कम हो जानी चाहिए। अपनी डिमांड है 10, तो अपनी डिमांड 10 से 5 रहनी चाहिए क्योंकि प्राइस डबल हो गई। इट मीन्स 5 कम हो जानी चाहिए। सपोज दिस इज 5, तो अपनी जो डिमांड है वो प्राइस जब बढ़ी तो डिमांड 5 कम होनी चाहिए, पर इस केस में कम हुई 3, 5 कम नहीं हुई। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, ओके, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बट हम ये कह रहे हैं, सिंपल लॉजिक थोड़ा समझो, प्राइस डबल हुई तो डिमांड हाफ रहनी चाहिए, 10 से 5 रहनी चाहिए, 5 कम होनी चाहिए, पर कम हुई 3, मतलब कम कम हुई, 5 कम नहीं हुई, ओनली 3 ही कम हुई। इट मीन जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, दैट इज इन इलास्टिक। तो अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखें, प्राइस इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इलास्टिसिटी लेस देन 1। Now if with rise in price total expenditure falls, अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, मीन्स नेगेटिव रिलेशन, प्राइस ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम। पहले क्या था जो हमने पहले स्टडी किया, पहले था प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर बढ़े, या फिर प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर कम हो, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन between price and total expenditure. If there is positive relation then elasticity is less than 1, जो हमने पहले स्टडी किया। Now we are studying negative relation। अगर प्राइस बढ़े एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, मीन्स नेगेटिव रिलेशन, तो इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। कैसे? तो इस केस में देखो, प्राइस बढ़ी, एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस 2 से 4, एक्सपेंडिचर 20 to 12, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। क्यों? पहले तो ये देखो, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज ओके। ये हमें प्रूव करना जरूरी है, लॉ ऑफ डिमांड। अब वही वाला पॉइंट है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, प्राइस डबल हो गई तो डिमांड हाफ रहनी चाहिए, 10 से हाफ 5 रहनी चाहिए, इट मीन्स 5 कम होनी चाहिए, क्योंकि 5 कम होगी तभी तो 5 रहेगी, तो 5 कम होनी चाहिए, बट कम हुई 7, क्योंकि 3 रही इसलिए 7 कम हो गई। मतलब डिमांड को 5 कम होना चाहिए था, बट डिमांड 7 कम हो गई, 5 से ज़्यादा कम हो गई। इट मीन्स डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, दिस इज ग्रेटर देन 1। ऐसे ही हम यहाँ पे जो बना रहे हैं कि प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में अगर नेगेटिव रिलेशन है,
इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1. If with rise in price total expenditure remains same, अब प्राइस राइज हो या फॉल हो, कुछ भी हो, it means you can say with change in price total expenditure remains same. अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे देन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. फिर इलास्टिसिटी होगी इक्वल्स टू 1. देखो जैसे यहाँ पे है लॉ ऑफ डिमांड, पहले चेक करो, प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड कम हो गई, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज ओके. तो इसमें प्राइस डबल हो गई, डिमांड 5 हाफ रह गई, 5 कम हो गई, हाफ ही रहनी चाहिए थी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस डबल हो गई, डिमांड हाफ रह गई, इट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. तो विद राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इज सेम, E इक्वल्स टू 1. जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि प्राइस इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, बट एक्सपेंडिचर नो इंक्रीज नो डिक्रीज, इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ, इट मीन्स कोई रिलेशन नहीं है. प्राइस चेंज होने से एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बना प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का, इसलिए इलास्टिसिटी बन गई इक्वल्स टू 1. तो ये जो रिलेशन है पॉजिटिव नेगेटिव नो रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू विल ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस रिलेशनशिप, you take only 2 variables, price and total expenditure. One side total expenditure, other side price. जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे x प्राइस लगा देते हैं, तो x को यहाँ वो लिखना छोड़ देते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर है, देन वो कुछ और बन जाता है फिर लॉ ऑफ डिमांड टाइप. तो आपने यहाँ x नहीं लिखना, अगर x लिखना है तो यहाँ लिखो टोटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज यू टेक इट टोटल एक्सपेंडिचर हेयर, बिकॉज इन दिस डायग्राम वी आर शोइंग द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड दीज 2 वेरिएबल्स आर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. So one side one variable total expenditure, other side another variable price. ये दोनों ही लेने हैं. पॉजिटिव रिलेशन, दिस इज पॉजिटिव रिलेशन. तो हमने ये तीनों इकट्ठे बना दिए एक डायग्राम में, और कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बड़ा ही सिंपल है. ये पॉजिटिव रिलेशन है. पॉजिटिव रिलेशन देखो कैसे, suppose initial price is P1, demand is T1, प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम P1 टू P2. यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया फ्रॉम T1 टू T2, तो प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया. इट मीन्स ये सारी लाइन शो कर रही है पॉजिटिव रिलेशन, और अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तो ये सारे एरिया में क्या होगा, E less than 1. This is the negative relation. Suppose price is P3, expenditure is TE. प्राइस बढ़ी P3 से P4, एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो दिस इज नेगेटिव रिलेशन, इसलिए E है ग्रेटर देन 1. और यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, P2 पे एक्सपेंडिचर 32, प्राइस इंक्रीज हुआ फिर भी एक्सपेंडिचर है T2, तो ये बन गया नो रिलेशन. दिस वन इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1. ये डायग्राम यू कैन ड्रॉ विद मी स्टेप बाय स्टेप. मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बता देता हूँ. एंड
अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, यू ऑल्सो ड्रॉ विद मी स्टेप बाय स्टेप। One side total expenditure, other side price. This is positive relation, no relation, and this is negative relation. अब आप देखो, suppose initial price is this is expenditure, this price is suppose P1, this is point A, and this is suppose T1, TE1 or T1, total expenditure. Now when price rises from P1 to P2, अब जैसे ही प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो गई, this is point B. Now expenditure is T2. तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई P1 से P2, एक्सपेंडिचर बढ़ गया T1 से T2. It means from this A to B, or from this point you can say the whole line. Here in this black area, there is positive relation between price and total expenditure. Therefore, in this area, elasticity is less than 1. This is one point. Now, initially, you suppose price is P2, expenditure is T2. Suppose price rises from P2 to P3. And this is point C. अब जो प्राइस है वो पहले इसको P1 को अब छोड़ दो. सपोज प्राइस है P2, एक्सपेंडिचर है T2. प्राइस इंक्रीज्ड फ्रॉम P2 to P3, बट एक्सपेंडिचर इज सेम T2. ये P2 पे भी T2 है, P3 पे भी T2 है. इट मीन्स प्राइस चेंज होने पे, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर सेम ही रहा T2. तो ये B से लेके C तक जो इलास्टिसिटी है इट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि B से लेकर C तक प्राइस चेंज होने से एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा. Now, suppose initially price is P3, expenditure is T2. अब आप इसको फर्स्ट पॉइंट मान के चलो, बाकी सब भूल जाओ.
Suppose price is P3, expenditure is T2. तो अगर हम अब प्राइस बढ़ाएं, suppose price rises from P3 to P4, प्राइस P3 से बढ़कर P4 हो गई, and now this is the point D. अब आप देखो, स्टार्टिंग था हमारी P3 प्राइस, एक्सपेंडिचर इज T2, तो प्राइस बढ़ गई P3 से P4, एक्सपेंडिचर कम हो गया T2 से T1, P3 पे T2, P4 पे T1, तो प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो गया. दिस इज नेगेटिव relation. It means from C to D or from C to this whole pink line, E is greater than 1. तो हमने क्या किया? On the basis of relationship between price and total expenditure, we calculated price elasticity of demand, less than 1, equals to 1 और greater than 1. तो आप प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बेस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. Second method is proportionate method. Proportionate method is nothing but simply the definition of price elasticity of demand. जो हमने पहले यहाँ definition में explain किया, proportionate change in quantity demanded for X, proportionate change in price of X, इसको फिर जो mathematically solve किया, 1 और 2 lines, both are same, बिल्कुल सेम है. माइनस का हमने अपनी तरफ से साइन लगाया है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो ये बिल्कुल सेम ही है जो मीनिंग डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया. एंड फाइनली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज Px upon Qx delta Qx upon delta Px. To calculate this, we are taking numerical example. Suppose price is 2, demand is 10, price is 4, demand is 7. ये हमने जो इससे पहले एक्सप्लेन किया था टोटल एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पॉइंट 2, 4, 10, 7, वही ले लिया हमने. 2, 4, 10, 7. दिस इज द फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है. माइनस माइनस Px अपॉन Qx, ये हम लेते हैं कि पहले प्राइस क्या था, डिमांड क्या था. प्राइस इज 2, डिमांड इज 10, 2, 10, ये वाला. नाउ चेंज इन Qx. अब क्या है, पहले क्या था, 7 माइनस 10. चेंज इन Px, अब क्या है, पहले क्या था, 4 माइनस 2. तो इसको हमने सॉल्व किया मैथमेटिकली. -2/10 सेम, 7 माइनस 10 -3, 4 माइनस 2 2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 10 3/10 इट इज 0.3. 0.3 मीन्स लेस देन 1. तो जो हमने पहले बनाया था इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, लेस देन 1. Now this is another improvement
or you can say benefit of the proportionate method than total expenditure method. प्रोपोर्शनेट मेथड का एक फ़ायदा है जो टोटल एक्सपेंडिचर में नहीं एक्सप्लेन होता। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें ये पता चला इस टेबल में कि इसकी जो इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में, लेस देन 1। पर लेस देन 1 एग्जैक्ट 0 एंड 1 के बीच में कितनी आएगी वो इसमें हमें नहीं पता चलता टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। बट जब हमने इन वैल्यूज़ को प्रोपोर्शनेट मेथड के साथ कैलकुलेट किया, नो यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। लेस देन 1 तो आ ही गया, इन इलास्टिक आ गया, ओके। बट इन प्रोपोर्शनेट मेथड you get the exact degree of price elasticity of demand। तो इसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन्ड meaning definition of elasticity of demand and price elasticity of demand, its definition, degrees, and one or two methods for its measurement, total expenditure and proportionate method. To understand point method, arc method, revenue method, and income elasticity and cross elasticity of demand, must watch second part of this video. Thank you.